Chapter number 27, Theory of Income Determination. Economy must produce goods and services and generate income for its citizen. For this, it must provide employment opportunities. ठीक है, कोई भी इकोनॉमी हो उसमें इस तरह की एक्टिविटीज होनी ही चाहिए, राइट, जिसके बिना मतलब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो सकती है। अगर इस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एक्टिविटीज अगर चल रही है तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी लोगों को और वो लोग कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर पाएंगे, इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, डेवलप होती रहेगी। इन दिस कंटेक्स्ट it is important to ask the question how much output should be produced in the economy। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में अगर देखने जाए तो हम लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि how much goods should be produced, मतलब how much output, मतलब कितना टोटल उसका आउटपुट होना चाहिए प्रोड्यूस करने का, how much output should be produced in the economy, what should be the level of income and employment, उसका लेवल कितना होना चाहिए इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का। John Maynard Keynes, a famous economist who pioneered the study of macroeconomics in the 1930s, has propounded a simple theory of income and employment to answer this question. Let's see. 27.1 Model of simple economy. When we talk about the determination of income and employment in an economy, the first step is to define the aggregate demand function of the economy. Aggregate demand of the functions of the economy हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये first step होता है। Here we assume that the economy is operating in a short run, ठीक है, आप लोग इसमें assume करते हैं कि economy short run में चल रही है, run। Let's see the concept of aggregate demand. Aggregate demand of an economy is defined as a total demand of goods and services at a given price level। मतलब total demand of goods and services जो होती है at a given price, एक given price दिया होता है, total उसकी जो डिमांड है किसी भी goods and services की, तो वो क्या होगा, aggregate demand होगा। Price are given or fixed because in short run period price of goods and services do not change। short run period में क्या होता है, prices change नहीं होते, easily ये prices change नहीं होते। long run period में because of changing time, ठीक है, तो उसमें prices change हो सकते हैं, but short run period में price जो होती है वो change नहीं होती है। Prices are given or fixed because in a short run period prices of goods and services do not change। A measure of aggregate demand is aggregate expenditure incurred by the different consuming sectors of an economy. No consumption of goods and services at a prevailing price level। Now the question arises, what are the consuming sectors in the economy? कौन से sectors हैं जो consume कर रहे हैं? It must be noted that economy's total product is used for a final consumption as well as for further production। Accordingly, we can identify the following consuming sectors। ठीक है, मतलब अब एक इकोनॉमी में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो कितने प्रमाण में है, राइट। अगर एक कंपनी है जो बेबी प्रोडक्ट्स को अगर बना रही है तो वो पहले ये सर्च आउट करेगी कि उनके एरिया में या फिर उनके नियर बाय कि जहाँ पे ये अगर हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें वो लोग किस पे फोकस करेंगे, कैसी पॉपुलेशन पे फोकस करेंगे, तो जनरली वो लोग फोकस करेंगे कि कितने न्यूबॉर्न बेबीज का बर्थ हुआ है, बर्थ रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज जो है उनका हम लोग बर्थ रेट देखते हैं कि कितना इस साल हुआ है और उनको कितना पॉपुलेशन है। वो लोग वो पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे कि जो ऑलरेडी एजेड है, जो यंग है, राइट। अगर उसी तरीके से जो कंपनी कुछ यंगस्टर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही है फॉर काइंड लाइक कोई फेशियल किट है या फिर कोई कॉस्मेटिक्स की आइटम है, तो वो लोग किस पे फोकस करेंगे, यंगस्टर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ना तो बेबी प्रोडक्ट्स में आएंगे ना तो जो बहुत ओल्ड एज लोग होते हैं वो लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वो लोग उस पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देंगे और उनके एरिया में ऐसे लोग रहने वाले कितने हैं, ठीक है, कि ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे, उसके ऊपर वो लोग फोकस करेंगे। तो जनरली हम लोग सेक्टर्स देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में ये चीज यूज होने वाली है और वो कितनी अमाउंट में है, कितने क्वांटिटी में है, राइट। जैसे कि हाउस होल्ड है, फॉर्म है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ द डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज बाय दिस सेक्टर टेकन टुगेदर। लेट अस डिस्कस दिस कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड सेपरेटली।
First one is household consumption demand. The household sector of economy consists of individual and families and non-profit organizations who serve the household. ठीक है, ये household में कौन कौन आएंगे? एक तो individuals आएंगे, कुछ family members आएंगे, ठीक है, so वो लोग इसमें involved होते हैं. These entities consume final goods and services for the satisfaction of wants. ये लोग क्या करेंगे? फाइनल गुड्स ही परचेस करेंगे, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. वो लोग रॉ मटेरियल परचेस करने जाएंगे, वो डायरेक्ट क्या करेंगे? फाइनल गुड्स परचेस करेंगे. इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज डिमांड फॉर बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. अब इंडिविजुअल्स और फैमिलीज जो भी है वो लोग कैसे दोनों टाइप के गुड्स को परचेस करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे, मतलब डिमांड करेंगे. जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स हमने देखे थे और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी देखे थे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स आर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कार, स्कूटर, मोटरबाइक, फर्नीचर एक्सेट्रा. ये सारे ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि इंक्लूडिंग फूड हो, नॉन फूड आइटम्स हो, ठीक है, कि जो बहुत जल्दी वो खराब हो सकते हैं, ऐसे जो फूड आइटम्स होती हैं वो. सीरियल, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, आर द फूड आइटम्स वेयर क्लोथ, शूज, कॉस्मेटिक्स, फ्यूल एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ नॉन फूड आइटम्स. ठीक है, all these goods are demanded by the household. ये सारे goods जो है वो household demand करती है. The non-profit organizations serving the household sector, including charitable trusts, religious foundations, etc., who demand goods and services to serve the household sector. They do not do business to earn profit. ये generally ऐसे होते हैं non-profit organizations जो business करते हैं but उनका motive profit earn करने का नहीं होता है, ठीक है. Who demand goods and services to serve the household sector. They do not do business to earn profit. For example, a trust to serve the differently abled people demand various goods and such as office stationeries, furniture, vehicle, etc. Such consumption is a part of household consumption demand. ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोगों को हेल्प किया करते हैं कि जिसके सामने से उनको रिटर्न में कुछ प्रॉफिट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ऐसे लोगों को ये लोग चीजें प्रोवाइड करते हैं. जैसे उन्होंने बताया कि रिलीजियस फाउंडेशंस जो होते हैं वो बिजनेस करते, मतलब वो दूसरों को लोगों को चीजें दे भी रहे हैं बट सामने से कुछ लेने का उनका मोटिव नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड्स, ये लोग ये सारी चीजें डिमांड करते हैं. सेकेंड वन, प्रोड्यूसर्स और फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिमांड. The firm and or the producer demand goods and services for the further production. The demand for the goods by the firm to produce a product is known as investment. ठीक है, मतलब कि कुछ फर्म्स और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे भी होती हैं, मतलब वो कुछ प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और उसमें से भी वो एक अपना अलग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक कार जो होती है उसके जो डोर्स बोले हम या फिर उसका ग्लास बोले हम, उसमें जो विंडोज के ग्लास होते हैं, तो वो कोई और फर्म उसको बना रही होती है, वो उनका फाइनल गुड्स होता है. ठीक है, फिर उसको लाकर हम असेंबल करते हैं, हमारा एक अलग सा कार बनाते हैं. सो हम लोग क्या है, हम लोग एक अलग फर्म है जो बनाई हुई किसी और कंपनी के जो डोर्स हैं या ग्लास है उसको यूज कर रहे हैं, जो टायर्स हैं किसी और कंपनी से बन के आए हैं उसे हम लोग यूज कर रहे हैं, उसे असेंबल करके हम एक अपना नया प्रोडक्ट बना रहे हैं. So the demand for goods by the firm to produce a product is known as investment. तो वो एक investment हुआ. Firms demand capital goods such as machinery and equipment, and they also demand intermediate goods for the further production. इसको intermediate goods भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कोई और production कर रहे हैं. ठीक है, purchase of wheat flour to produce a bread by a bakery unit is example of intermediate goods or a secondary inputs. जैसे कि इन्होंने बताया कि वीट जो है उसे हम लोग परचेस कर रहे हैं. ठीक है, वीट फ्लोर जो है उसका हम लोग परचेस कर रहे हैं, वो किसी का फाइनल प्रोडक्ट है, राइट. किसी ने ऑलरेडी बहुत मेहनत से उसे उगाया है. ठीक है, उसके बीज रोपने के बाद वो उगा है, उसको कटिंग कर वो फिर मार्केट में आया है, वो उनका फाइनल प्रोडक्ट बनके उन्होंने बेच दिया. उसके बाद हम उस वीट को परचेस कर रहे हैं, वीट फ्लोर को परचेस कर रहे हैं और हम लोग एक नया प्रोडक्ट ब्रेड बना रहे हैं और उसको फिर बेचेंगे. ठीक है, so this is what example of intermediate goods or secondary inputs. Water है, electricity है, raw material extra used for product in one example of intermediate consumption. Let's move. So ये सारे intermediate जो होते हैं intermediate goods बोलते हैं इनको. उसके बाद है third, government expenditure.
The government constitutes an important sector which purchases goods and services for the benefits of public. So, all purchases made by the government are intermediate purchases. The government provides services such as law and order, defense, education, health, etc. To provide these services, the government functions through various ministries and departments. ठीक है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये सारे अलग अलग जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. The government to provide these services, the government functions through various ministries and departments. To maintain these offices, the government purchases uniforms, vehicles, stationery, furniture, etc. It spends money on payment of salaries to its employees. In this way, government expenditure constitutes a sizable part of aggregate demand. ठीक है, मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की भी उन्हें जरूरत पड़ती है, राइट. उन्होंने किसी बहुत सारे एम्प्लॉइज को रखा हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. अब उन लोग को भी फैसिलिटी देने के लिए वो वहाँ का ऑफिस का फर्नीचर बनवाते हैं, राइट. स्टेशनरी आइटम्स को परचेज करते हैं, उनके लिए आने ले जाने के लिए उनके लिए व्हीकल्स रखे जाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सपेंस करते हैं, फर्नीचर जैसे उन्होंने बताया. ठीक है, तो ये सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का. उसके बाद जाके वो एम्प्लॉयज आ रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो ये सारा भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंपॉर्टेंट, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट बनकर सामने आ रहा है. कंस्टिट्यूट द साइजेबल पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. लेट्स सी फोर्थ, परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. We are living in the era of globalization where the countries are linked to each other through trade and transfer. ट्रेड और ट्रांसफर से हम लोग एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ी हुई है, राइट. हमारे यहाँ के गुड्स सामने वाली कंट्री में जा रहे हैं, वहां के गुड्स हमारे यहाँ पे आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है. सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, मतलब हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये ग्लोबल है. ठीक है, इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. वेयर इन कंट्रीज आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ी हुई है. अ कंट्री व्हिच हैज गॉट इकोनॉमिक रिलेशन विद अनदर कंट्री इज कॉल्ड अ ओपन इकोनॉमी. मतलब किसी भी कंट्री का किसी भी और कंट्री के साथ अगर इकोनॉमिक रिलेशन है, ठीक है, लेन देन का रिलेशन है पैसों के मामले में, सो हम लोग उसे बोल सकते हैं ओपन इकोनॉमी. इन एन ओपन इकोनॉमी द फॉरेन कंट्रीज व्हिच हैव इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द डोमेस्टिक कंट्री constitute to the rest of the world. The way the household of the domestic country demand goods and services inside the country, in the same way the foreigners also purchase goods and services from the country from outside. ठीक है, जैसे हम लोग बाहर की कंट्री वालों के पास से कोई ना कोई चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से वो लोग भी हमारे पास से कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, हम लोग भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए इंपोर्ट हो रहा है. ठीक है, उसी तरह उनके किसी और कंट्रीज के साथ भी लेन देन चलता रहता है. दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक country. However, since the household forms and government of the domestic country also purchase goods and services from abroad, which are called imports from the rest of the world. ठीक है, मतलब वो उनका क्या हुआ, इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग दूसरे अलग अलग कंट्रीज के पास से. अगर वो खुद किसी और कंट्री में बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हमारी बात करें, हम लोग किसी और कंट्री से मंगवा रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इन द सेम वे हम लोग यहाँ से कोई भी गुड्स को हम लोग अगर बाहर भेज रहे हैं, सो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आर कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. तो हम लोग एक्सपोर्ट जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट के साथ माइनस करते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है, नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट इज अ मेजर ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो बाहर की कंट्री वाले जो डिमांड कर रहे हैं वो है, ठीक है, इन द डोमेस्टिक कंट्री. ये एक मेजर है. Now we can write that aggregate demand is the sum of the demands by the household, firms, governments and rest of the world. मतलब aggregate demand क्या है, जो एक particular person, एक household भी डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो भी डिमांड कर रहा है. Let us express household demand as a consumption, firms demand as a investment, government demand as a government purchase and demand for the rest of the world as a net export. ये तीन अलग अलग तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है. Then we can say that aggregate demand is the sum of the consumption, investment, government purchase and net export. We can also write systematically AD is equals to C plus 1 plus G plus NX.
मतलब AD यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड, C है कंजप्शन, I is equals to investment, G for government purchase, and NX is equals to net export. You can also write systematically AD is equals to C plus I plus G plus NX. AD is equals to aggregate demand, जैसे कि C is equals to consumption, I investment, G government purchase, NX is equals to net export, NX is equals to X minus M, where X is equals to export minus M is equals to import. AD is also called aggregate expenditure in the economy. Determining equilibrium level of income. The first step is determining the equilibrium level of income in an economy is to estimate its aggregate demand. उसका aggregate demand को estimate करना. The aggregate demand is an open economy is given in equation above. To develop a simple model, let us assume that there are two sections in the economy, household and firm. ठीक है, generally दो sections हम लोग assume करते हैं. The demands of another two sectors such as government and rest of the world can assume to be given for the time being. In such case, the aggregate demand will be the sum of the consumption and investment, and similarly in a two sectors economy, AD is equals to क्या, C plus I, where AD क्या है, aggregate demand. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे conditions of equilibrium दिया हुआ है. Equilibrium income of economy is determined at the point where aggregate demand equals to value of a total output. जहाँ पे equal होती है total output के हिसाब से aggregate demand जो है, it can be said that actual value of a total output is the same as economy's income. Actual value जो भी हो output की, okay, same कैसी होगी, economy की income के हिसाब से. Let it be denoted as Y. It is also said that income is divided between consumption and saving. Income दोनों के बीच में divide की हुई होती है. So Y is equals to C plus S, whereas S is equals to saving. So according to the conditions of equilibrium, it can be written that AD is equals to Y, C plus I is equals to C plus S. ठीक है, यहाँ पे consumption और investment और ठीक है, और में दिया हुआ है. उसके बाद उसको फिर या फिर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग भी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं. इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू द आउटपुट. एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल्स हो, आउटपुट के हिसाब से हो, एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग. So here we have completed this topic. Let's come to the diagrammatic presentation. 27.2.1. The equilibrium level of income can presented using diagram. Equilibrium जो है, equilibrium level जो है of income, उसको हम लोग diagrammatic way से हमने present किया. First, we have to make the diagram of aggregate demand, which is the sum of the consumption and investment in the two sector economy. ठीक है, पहले तो हम लोग किस पे consumption कितना है और investment कितने किया है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे. You have already seen the diagram of consumption and investment function in the previous lesson. We will use both this diagram to construct the diagram C plus I as given below. Let's see, AD is equals to aggregate demand यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, Y भी यहाँ पे है. In the previous lesson we said that the consumption function starts from point on the vertical axis. Consumption function जो होता है वो हमेशा किससे होता है, vertical axis से होता है, horizontal से नहीं होता है, vertical axis से ही होता है ये वाला पार्ट. ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया हुआ है C plus I is equals to AD. ठीक है, vertical axis, whereas A is in the measure of fixed consumption. Then from point A, the consumption function slopes upwards at a rate equal to MPC. अब consumption function जो है slopes upward at a rate equal to MPC. It is also mentioned in the previous lesson that investment is fixed or autonomous. ठीक है, कंजप्शन फंक्शन जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव होता है. ठीक है, ये इन्होंने बता कर रखा है. जो इन्होंने लास्ट लेसन में भी हम लोगों ने देखा था, लेसन दैट इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड और ऑटोनोमस. ये क्या रहता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स होता है या फिर ऑटोनोमस होता है. हेंस we add investment with the consumption function, then automatically fixed consumption and fixed investment will be added, so that C plus I will start from point A plus I, where O to A plus I will be measure of autonomous expenditure by the both household and firm.
ठीक है, वो दोनों में इंक्लूड हो जाता है। इक्वेशन ऑफ C plus I, note that as said earlier, C is equals to A plus by and I is equals to fixed amount, so C plus I is equals to A plus by plus I, और उसी हिसाब से is equals to क्या होगा, A plus I plus by दोनों साथ में, A plus I दोनों साथ में किया और एक by यहाँ पे, where B is equals to MPC। ये पूरा के पूरा यहाँ तक अलग अलग इक्वेशंस थे। It is seen clearly that V consumption function, when consumption function C starts from A, the aggregate demand C plus 1 I starts from A plus I, which is above C and by an amount equal to the investment, ठीक है, I, both C and C plus I slopes upward at a rate equal to B or MPC, hence C and C plus I parallel to each other। यहाँ पे जैसे इन्होंने parallel वाली लाइन दी है, ये वाला जो पार्ट है I, ठीक है, C और C plus I ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये तो फिर भी अपवर्ड मूवमेंट में है, ये लोग पैरेलल है। उसके बाद है the significance of 45 degree line, the value of output is the same as the level of income Y, also Y is the sum of C and S, or C is equals to C plus I, geometrically on a 45 degree line through the origin Y is equals to C plus I। ये जो बता रखा है 45 डिग्री वाली लाइन C Y is equals to C plus S, तो when we measure income Y along horizontal axis पे हम लोग इनकम जो देख रहे हैं C plus S along vertical axis, it should be noted that on 45 degree line C plus S is equals to Y, ये हमेशा नोटेड रहेगा, C plus Y is equals to Y because it is divides the plane into the two equal parts। ये क्या कर रहा है 45 डिग्री, ये दोनों पार्ट्स को इक्वल में पार्ट डिवाइड कर रहा है, divide the plane into two equal parts। See the diagram we have here, ये दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है 45 डिग्री जो है तब। उसके बाद उन्होंने बताया डायग्राम फॉर द इक्विलिब्रियम इनकम, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वी कैन ब्रिंग the above two diagrams of C plus I and 45 degree line together in one diagram as given below, ठीक है। यहाँ पे है इनकम एंड आउटपुट दोनों चीजें बताएं। as shown in the diagram above, aggregate demand line shows C plus I cuts the 45 degree। अब C plus I जो है, C plus I वो क्या कर रहा है 45 डिग्री जो है उसको कट कर रहा है यहाँ पे, ये C plus I वाली जो है E at a point E, ये जो पॉइंट E है वो उन्होंने बताया है। So E is the point of equilibrium, जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ, where C plus I is equals to C plus S। Drop perpendicular from point E on the both axes, the perpendicular cuts the horizontal axis which shows income at a point YO, ठीक है, YO। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये इन्होंने बताया है यहाँ पे the perpendicular cuts the horizontal axis जो है इसको कट कर रहा है यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है y वाला इसको perpendicular को कट कर रहा है। Perpendicular from the point E on the both axes, the perpendicular cuts the horizontal axis which shows income at a point YO, hence the equilibrium level of income is determined at a point Y। तो यहाँ पे equilibrium level उन्होंने बताया है। YO0 is the measure of equilibrium level of income, the level of aggregate demand that matches the measure of equilibrium income is determined at a point AD0 on the vertical axis, ठीक है, the distance O to AD0 aggregate demand equals to distance OYO, equilibrium level of income। यहाँ पे ये पूरी चीजें सारे इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, AD है, Y हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे और ये वर्टिकल पे बाय AD बाय और यहाँ पे X, ठीक है, इनकम और आउटपुट दोनों हॉरिजॉन्टल वाले साइड में। यहाँ पे वायरो में बताया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो कट हो रहा है इसको 45 डिग्री सेल्सियस को पॉइंट E पे, ये भी बताया C plus I पे, इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं if you need। Equilibrium income by saving and investment approach, equilibrium level of income can be determined by using saving and investment approach। Recall that we have
गिवन द इक्विलिब्रियम कंडीशन as C plus I is equals to C plus S, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेम सेविंग की तरह, जैसे हमने I is equals to क्या बताया S, इन्वेस्टमेंट is equals to saving, hence whenever aggregate demand equals to the output, जब भी aggregate demand आउटपुट के हिसाब से इक्वल हो, सेविंग आल्सो इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तो उसके हिसाब से सेविंग क्या है वो भी इन्वेस्टमेंट से इक्वल रहेगा। दिस मींस दैट द पॉइंट एट व्हिच saving and investment are equal refers to the equilibrium level of income. See diagram, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दे रखा है in 27.4 income y, ये y जो बता रहे हैं इन्होंने, इनकम जो है is measured along with the horizontal axis, तो ये horizontal axis के साथ इन्होंने बता के रखी है, ठीक है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेजर्ड along with the vertical axis, सेविंग जो है वो vertical axis के साथ बता के रखी है, ये वाला पार्ट। The investment curve is shown in the horizontal line I, indicating that the investment is autonomous. यहाँ पे investment क्या है? Autonomous है, ठीक है। Or fixed at all the levels of income. The saving function is upward sloping starting from A below the origin. C, the lesser consumption saving and investment. Both S and I curves cut each other at a point F. S और I दोनों जो है S और I ये F पे कट कर रहा है, ठीक है। ये I वाली जो लाइन है इन्वेस्टमेंट की और ये सेविंग वाली जो लाइन है वो पॉइंट कट यहाँ पे हो रहा है F। The saving function is upward sloping starting from below origins, ठीक है। Both S and I cut each other at a point F where S is equals to I. From the point F, draw a perpendicular on an income axis, horizontal axis, to get the level of equilibrium income, which is labeled as Y. Note that both the equilibrium level of income YO shown in the diagram and ये दोनों बताया हुआ है 27.4 में 27.3 में दोनों में ये बताया हुआ है, आप इन दोनों को मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट उन्होंने बता रखी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे किस तरीके से S और I इन्वेस्टमेंट ये दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट F पे। It should be noted that in the economy people who save may be different from people who invest. ये ठीक है, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, वो थोड़े डिफरेंट होंगे। So saving and investment equilibrium is not automatic or natural. ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, ये नेचुरल भी नहीं है। Is not automatic or natural. It so happen that people plan to save certain amount but ends up with a saving different amount. ठीक है, जो प्लान किया होता है उससे कम में कुछ सेविंग वो लोग करते हैं, ठीक है। It so happen that people plan to save certain amount, कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करने के लिए उन्होंने प्लान किया होता है, but at the end सेविंग कुछ उससे कम ही होता है, राइट, डिफरेंट अमाउंट सेव होता है। In other words, planned saving may be different from actual or realized saving. जो एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया होता है कि इस मंथ की मुझे पूरी सैलरी में से मुझे 10,000 सेव करना है, बट मैं 10,000 की जगह 8,000 सेव कर रहा हूं बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपेंडिचर, ठीक है। The difference is planned and actual amount could be due to unaccepted change in the price in the market and changes in the expectations of household, etc. मतलब ये चेंज क्यों आ रहा है? मैंने प्लान किया था 10,000 सेव करना है, बट मैं 8,000 सेव कर रहा हूँ। क्यों ये चेंज आया? ऐसा हो सकता है कि मेरा रेगुलर जो एक्सपेंस हो रहा हो उसमें कोई प्राइस चेंज हो गई हो। पहले मैं कोई चीज परचेस करता था, फ्रूट आइटम्स है या वेजिटेबल्स है, तो अब उसके प्राइस में बढ़ गया है, उसकी सारी प्राइसिंग जो है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से मुझे 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं जो मैं इसमें जो मैंने प्लान किया था उस हिसाब से सेव नहीं कर पा रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, प्लान सेविंग मे बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल और रियलाइज्ड saving. The difference in the plan and actual amount could be due to the unaccepted changes in the price in the market. Unaccepted changes जो हो रहे हैं prices में market में उसकी वजह से हो सकता है। फिर changes expectations of household etc. Similarly, firms may be planning to invest certain amount in the assets but may be end up in the procuring asset which are different in the value as a plan earlier. ऐसा बहुत बार होता है कि जो भी फर्म ने प्लान किया होता है कि ये मशीन हमें लाना है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा या फिर हमारा सेविंग्स जो है वो बढ़ता रहेगा, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस वो लोग उसको नहीं लाकर किसी और मशीन को ला रहे हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने प्लान किया होता है अर्लियर वैसे नहीं होता है, तो कुछ एक्सपेंस बढ़ भी जाता है, कुछ एक्सपेंस कम भी होता है। दिस डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेट। ये क्यों होता है? या तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई हो तो हम लोग उसको परचेज अभी नहीं कर पाएंगे, या फिर उसकी प्राइस कम हो गई हो। Machinery and equipment, availability of loan from the banks, etc. So planned and realized investment may not be always equal. जो भी हमने प्लान किया होता है, जो भी हम लोग फाइनली उसको सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ये हमेशा फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा इक्वल हो ये जरूरत नहीं होता है। Keynes has termed planned as an extent and realized as an export.
केनीज ने जो है ऑथर इन्होंने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है, प्लान को एक्सटेंड और रियलाइज को एज अ एक्सपोर्ट. Accordingly, we have extent saving and investment and export saving and investment. Below the level of equilibrium income, YO, there is excess demand as I is greater than S. Similarly, above YO, there is excess supply situation as S is greater than I. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर देन सेविंग हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेविंग जो है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई. In the economy, price level, expectations of a people fluctuates, so extent and export items are not equal. At the equilibrium level of income YO, there is neither excess demand nor excess supply. Hence, extent and export saving and investment are equal to the equilibrium level of income. ठीक है, मतलब ये क्यों हो रहा है कि पीपल्स की जो डिमांड है, उन्होंने बताया कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है. जो हमारी डिमांड्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मुझे 10,000 का सेविंग करना है, बट मेरी कुछ डिमांड्स जो है वो बढ़ गई, राइट. मैं जब नॉर्मल कोई चीज परचेस किया करता था, अब मैं उसको ब्रांडेड परचेस कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज माय इनकम हैज बीन इंक्रीज. तो मैं क्या करूंगा, ब्रांडेड चीजों को परचेस करूंगा. तो ब्रांडेड चीजें परचेस करने में क्या होगा, मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो पहले 1500 हुआ करता था, अब वो 2000 हो गया. पहले वो चीज 1000 की होती थी, अब वो 1200 1500 की होगी. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइस चेंजेस होने की वजह से हमारी क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्लस हमारी डिमांड्स भी फ्लक्चुएट हो रही है. कि पहले ऐसा था, अब हम लोग इस बिकॉज ऑफ चेंज द फैशन हम लोग वो चीज को परचेस करना बंद करके हम लोग थोड़ा एक्सपेंसिव चीज को परचेस कर रहे हैं. तो वो क्या हो रहा है, डिमांड्स एक्सेप्टेशंस ऑफ पीपल भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इकोनॉमी में प्राइस लेवल भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जो हमने एग्जैक्टली प्लान किया होता है उस हिसाब से नहीं होता है. इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ये पूरा के पूरा, hence extent and export saving and investment are equal at equilibrium level of income. Concept of effective demand देखते हैं. According to Keynes, who gave the theory of equilibrium income, the point E is a figure 27.3 आप ऊपर देख सकते हैं, is the point of effective demand. In other words, effective demand in the economy refers to the point where aggregate demand equals to the level of आउटपुट. यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो है इक्वल टू द आउटपुट रहेगा इन द शॉर्ट रन गिवन इन द प्राइस लेवल. शॉर्ट रन पीरियड में जो पर्टिकुलर प्राइस दी हो उसमें. दिस इंप्लाइज दैट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी. तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या रिफ्लेक्ट करेगा, इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड.